Good morning, students. So far, all the concept related to reflection of light have been completed. We have understand basic concept related to reflection, types of reflection. Then we have studied plane mirror, image formation in plane mirror have also been completed. Then we have studied spherical mirror, both concave and convex mirror. We have done the rules of image formation, concave and convex mirror. And lastly, in the previous lecture, we have also understood the concept of sign convention, linear magnification, and mirror formula. And based on the sign convention mirror for linear magnification, the today class will be strictly on the practice of numerical. Today we will do the numerical based on the concept of sign convention, mirror formula, and linear magnification related to spherical mirror, concave and convex mirror. Observe, we will do only few sample problem. The questions which require special attention will be done here. I hope that you have practiced all those questions. If you find difficulty any question, you would be familiar with. Listen, open page number 198 at Chan, question number 13 first of all. What is given? I am writing the question. At what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect image. Six centimeter tall. This is a question. Read first of all. सबसे पहले कन्वेंशन मिरर फार्मूला लेंस फार्मूले से जो न्यूमेरिकल आएगा वो 4 न्यूमेरिकल हो सकता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, और साइन कन्वेंशन सबके लिए अलग अलग है. बिल्कुल, अब तक हम मिरर पढ़ चुके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, लेंस भी आगे पढ़ेंगे, कन्वेंशन सब में अलग अलग होगा. सबसे पहले हमको ये पहचानना जरूरी है क्वेश्चन किससे रिलेटेड है. यहाँ पे क्या लिखा गया? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर गिवन. First of all, in rough, you should write the sign convention associated with concave mirror. In a concave mirror, always object distance is negative. You have understood? Now, image distance may be positive, it may be negative. It depends upon the nature of the image. If image is virtual, the image distance will be positive. If image is real, the image distance will be negative. Now, then focal length of a concave mirror is always negative. Then height of object is always positive. Height of image again may be positive or negative, it depends upon the nature of the image. For a virtual image, height of image is positive, and for erect or a real image, height of image is negative. And at the same time, magnification can be positive, it can be negative. The magnification of a image will be positive if image is virtual and erect, while for inverted or a real image, the magnification is negative. These are the sign convention associated with the concave mirror. हम इसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं पिछले लेक्चर में. क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल कैसे करना ये देखो, लाइन पढ़ो. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. किसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है? concave mirror का. सॉल्यूशन. गिवन डाटा क्या क्या है? स्मॉल f रिप्रेजेंट फोकल लेंथ. व्हाट इज फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर. ये किस मिरर का फोकल लेंथ है? कॉनकेव मिरर का. कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या निगेटिव? निगेटिव. हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? माइनस. क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा. चेंज यहीं पे, यही न्यूमेरिकल सभी सिंपल होगा, बस कन्वेंशन को समझ के क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा रूल्स के अनुसार. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हम स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करें 10 सेंटीमीटर भी लिख रहे हैं, पर ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता. यहाँ पे एफ के आगे हम क्या यूज करेंगे? -10 सेंटीमीटर. देन लिसन, should an object 2 centimeter long, ये 2 centimeter क्या है? लॉन्ग. ऑब्जेक्ट का साइज. द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय HO 2 centimeter, and since height of object is always positive, it will be positive. Yes or not? Should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect image 6 centimeter tall? ये किसका हाइट है? erect image of 6 centimeter. हाइट ऑफ इमेज कितना दिया? 6 centimeter.
अब इमेज रियल हो सकता है या वर्चुअल भी, इसलिए हाइट ऑफ इमेज निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी, क्योंकि ये इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट इमेज वर्चुअल होता है हमेशा, वर्चुअल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होता है या निगेटिव, पॉजिटिव। हम यहाँ पे खुद ब खुद क्या लेंगे, प्लस। ये प्लस क्यों है, क्योंकि इमेज इरेक्ट है। अगर ये इमेज रियल या इन्वर्टेड होता HI हम क्या लेते हैं, माइनस। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बना पाएंगे। अब देखो कि कितने दूरी पे हम एक ऑब्जेक्ट को रखे कॉनकेव मिरर से, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिससे कि 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस का हाइट है तो 6 सेंटीमीटर हाइट किसका है, इमेज का। तो तुमको क्या निकालना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू हैव टू कैलकुलेट यू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, इतने डाटा से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 फार्मूला है। कौन कौन सा, एक मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, और साथ ही मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m = -v/u = hi/ho। यही 2 फार्मूले के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखें। मेरे पास HI HO पता है, हम मैग्नीफिकेशन का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो, बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। What we can write? What is the formula magnification? M will be equal to -v/u = height of image by height of object. It means -v/u, neither v nor u is given, but HI and HO is given. What is HI? 6. What is HO? 2. ये रेशियो कितना मिला, 3। तो v को लिखा जा सकता -3u। हम v और u में रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से। अभी क्वेश्चन बनाना काफ़ी सिंपल हो गया। हम किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, we will use mirror formula. By mirror formula, what you will get, 1/v + 1/u = 1/f. Yes or not? Now v is equal to -3u, substitute v = -3u plus 1/u. What is focal length? -10 -1/10। ये बात समझ में आया। आगे LCM ले तो 3u LCM होगा, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं हम 3u² लिख सकते, -u + 3u = -1/10, ये लिखा जा सकता। तो फर्दर 2u / 3u² = -1/10 लिख सकते, u से u कैंसिल हो जाएगा। ये कितना मिला, 20 = -3u, u = -20/3 = -6.66 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, u का वैल्यू समझ में आया, ये रिलेशन कैसे निकाले हैं, पूरा फ्रेम में तो आ रहा। u का वैल्यू किस तरह कैलकुलेट किया गया ये समझ में आ रहा है ना। u का वैल्यू -6.66 सेंटीमीटर है। हम पहले मैग्नीफिकेशन HI / HO के रेशियो से v का रिलेशन निकाली u के टर्म में, उसको मिरर पर सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली हम u का रिलेशन निकाल, क्योंकि फोकल लेंथ दिया ही गया है। u का वैल्यू -6.66 सेंटीमीटर, तुम आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। u का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता, यहाँ भी u का वैल्यू क्या है, निगेटिव। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इससे लिखना पड़ेगा, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 6.66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये इसका आंसर होगा। ये सबसे ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ये ओरिजिनली 1/v + 1/u = 1/f पे बेस नहीं है, हल्का चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और अधिकतर क्वेश्चन में सिर्फ यही करना है। ये एक क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। थर्टीन के बाद 14, 15, 16, 17 ये सभी सिंपल क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तुम पूछ सकते हो ग्रुप में, तुम ग्रुप पे पूछो, हम इसका आंसर उस वक्त प्रोवाइड करेंगे। जो प्रॉब्लम हुआ कंसेप्ट में वो भी हम सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ पे 20 भी काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। हम कौन सा क्वेश्चन करवा दें, हम 26 करवा दे रहे हैं, 27 करवा दे रहे हैं। पहले 26 देखो, क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा बोर्ड पे, तुम क्वेश्चन पढ़ लेना। ऐसा लिखा है बुक में, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखे। तो बेसिकली तुमको क्या फाइंड आउट करना, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अ कन्वर्जिंग मिरर, व्हिच वे आर कन्वर्जिंग, कॉनकेव और कॉनकेव। तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉनकेव मिरर नहीं दे रहा, कन्वर्जिंग मिरर दे रहा। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम किसके फोकल लेंथ का बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का। और इस कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये मिरर कन्वर्जिंग है, मतलब मिरर कॉनकेव है। कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। हम यहाँ पे खुद ब खुद क्या लिखेंगे, f = -20 सेंटीमीटर। ये समझना पड़ेगा। फिर आगे देखो, टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द साइड एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स मैग्नीफिकेशन यहाँ पे लिखा गया 1/4, और क्योंकि ये इमेज रियल है तो रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, निगेटिव। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि ये मैग्नीफिकेशन क्यों रियल है, क्योंकि ये इमेज क्या है, रियल।
इतने डाटा के लिए हमको क्या निकालना है, यू। हम फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे, तुम ध्यान से देखो। लिखा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्टिव प्लेस फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। एक कॉन्केव मिरर के पोल से हम कितने दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखे, तो तुमको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना, यू निकालना। कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव मिरर होता है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एफ क्या है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ साइड एक्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम डायरेक्टली इसको मैग्निफिकेशन लिखे हैं, लेकिन किस तरह मैग्निफिकेशन लिखे इस बात को हम समझा रहे। देखो, अगर माना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा, तो क्वेश्चन के अनुसार HI कितना है, 1/4 HO है ना। क्वेश्चन में तो यही ना लिखा ना, द हाइट द इमेज ऑफ द साइज एक्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो HI 1/4 HO है ना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, HI/HO। तो HI की जगह तुम लिखेगा HO/4/HO, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना मिलेगा, 1/4। और क्योंकि मैग्निफिकेशन ये इमेज रियल है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव होता, हम खुद ब खुद यहाँ पे वर्ड का साइन का यूज करेंगे, माइनस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के लिए हमको यू का वैल्यू निकालना, देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो। वही फार्मूला यूज करो, मैग्निफिकेशन बाय मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। But you can write m equal to -v/u, yes or not? Now m is -1/4 given will be equal to -v/u। ये कैंसिलिंग हो गया, तो रिलेशन क्या मिला, u इक्वल टू 4v। हम u और v में रिलेशन फाइंड आउट कर पाए ना। HI/HO का रेशियो दिया रहेगा, मैग्निफिकेशन का रेशियो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मैग्निफिकेशन का रेशियो दिया रहेगा, मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, वहाँ से तुम यू और वी का रिलेशन फाइंड आउट करो, मिरर में सब्स्टिट्यूट को डायरेक्टली आंसर निकालो। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ये फ्री, मतलब ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे कुछ करना है क्या, ये स्टेप समझ में आया ना। मैग्निफिकेशन -1/4, मैग्निफिकेशन -v/u होता, तो मैग्निफिकेशन की जगह -1/4 रखे और फॉर्मूला -v और -1 कैंसिल हो गया और 4v इक्वल टू u हमको रिलेशन मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन बनाना काफ़ी सिंपल है, मिरर फॉर्मूला का उपयोग करो। बाय मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v मीन्स 1v, u कितना है, 1/4v, f का वैल्यू -1/20 है या नहीं, क्या है तो कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से v का वैल्यू कैलकुलेट करो, ये -25 सेंटीमीटर मिलेगा, हम सॉल्व करके बता ही रहे। तुम LCM लो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4v², हम लिख सकते हैं 4v + v इक्वल टू -1/20। ये वैल्यू मिलेगा 5v/4v² इक्वल टू -1/20। ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, है ना, माना इक्वेशन 1 है। तो क्या बचा, 25 या 100 इज इक्वल टू -4v। तो v का वैल्यू कितना मिलेगा, -100/4 इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में, काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है, बस मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, काफ़ी सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन या इंटीग्रेशन भी नहीं करना, काफ़ी सिंपल तो है। अब आगे देखो, v का वैल्यू -25 सेंटीमीटर है, हमको u चाहिए था फ्रॉम इक्वेशन 1। ये सब बेहतर क्वेश्चन इसलिए हम करवा रहे हैं, ये अगर तुम क्वेश्चन समझ रहा तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा। u इक्वल टू 4v, तो 4 इंटू -25, ये वैल्यू कितना मिलेगा, -100 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, बस लिखना पड़ेगा द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर टू गेट एन रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 1/4 फॉर अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्या प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, काफ़ी सिंपल है। 27 देखो, 27 में काफ़ी बच्चे को प्रॉब्लम रहा है, हर बैच में करवा दिया जा रहा है। 27 में आसान ही है, क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते बस। देखो क्या लिखा, When an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। 27 पढ़ो बुक में, पेज नंबर 199। When an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट को जब 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे तो u का वैल्यू कितना है, -50 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन -1/2। ये केस फर्स्ट है क्वेश्चन का, दो केस दिया हुआ। केस फर्स्ट में मैग्निफिकेशन -1/2 है जब ऑब्जेक्ट -50 सेंटीमीटर पे है और इतना डाटा काफ़ी है। u v f में कॉन्स्टेंट क्या होगा एक मिरर के लिए, f। अब भले ही अगले केस में मैग्निफिकेशन -1/5 है तो u चेंज होगा, v चेंज होगा, लेकिन सेम क्या होगा, फोकल लेंथ। तो अगर हम इस डाटा से किसी तरह का फोकल लेंथ हम फाइंड आउट कर पाएँ
तो हम फोकल लेंथ मिल जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना, नेक्स्ट पार्ट को बनाना काफ़ी आसान होगा। तो पहला काफ़ी सिंपल सा बात है, इस डाटा से हम क्या निकालेंगे, मिरर का फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, सेम, और इस फोकल लेंथ को हम रिलेट कर सकते हैं सेकंड केस के, जब मैग्नीफिकेशन -1/5 दिया है। देखो ध्यान से, सिंस मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u, ये फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, तो हम लिख ही सकते हैं -1/2 इक्वल टू -v/-50। ये कैंसिल हो ही जाएगा, ये कट ही जाएगा। 25 कितना मिला, v का वैल्यू -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, मिरर फार्मूला भी पता है, हम फोकल लेंथ निकाल ही सकते, निकाल रहे हैं। भूलना मत, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f को मिरर फार्मूला बोलते हैं। ठीक इसी वक्त 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f को लेंस फार्मूला बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन हो तो मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, इसे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि तुमको ये समझ में प्लस मिरर फार्मूला यूज कर तो माइनस लेंस फार्मूला। तो मैं यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकता, ये वैल्यू -1/25 है और ये कितना वैल्यू है, -1/50। तो हम सॉल्व करो, f का वैल्यू तुमको मिला -16.66 सेंटीमीटर। सॉल्व करो, f का वैल्यू निकालो, निकाल ही सकते, -1/25 -1/50 को सॉल्व करो, फोकल लेंथ कितना, -16.66 सेंटीमीटर। केस फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप निकालना है क्वेश्चन में, जब यही मिरर मैग्नीफिकेशन -1/5 प्रोड्यूस कर रहा, बोलो मैग्नीफिकेशन माइनस है, ये मेरे रियल हुआ है वर्चुअल, ऑफ कोर्स रियल, एक रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन आइदर लेंस हो या मिरर, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन -1/5 हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, और साथ साथ एक और चीज़ हम निकाल चुके, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी हमको पता है, ये फोकल लेंथ कितना, -16.66 सेंटीमीटर। ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन हो गया है ना। देखो कैसे, सिंस m इक्वल टू -1/5 मीन्स -v/u इक्वल टू -1/5, ये हम कैंसिल कर ही सकते, तुम लिख ही सकता u इक्वल टू 5v। ये रिलेशन मिला है ना, ये रिलेशन माना इसकी इक्वेशन 1 है। चलो अब मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला। क्या होगा मिरर फार्मूला बोलो, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f है ना। तो 1/v मीन्स v पता नहीं है, तो 1/v को v ही रखा, u के जगह हम 5v लिख ही सकते, और 1/f मतलब -1/16.66 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से एलसीएम हम मल्टीप्लाई करते 5v², तो हम लिख नहीं सकते 6v इक्वल टू -1/16.66, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। अगर तुम यहाँ से v का वैल्यू निकालो फिर से, ये वैल्यू तुमको मिलेगा -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, यस। और क्योंकि v -25 मिल रहा है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u का वैल्यू 5v है, तो 5 × -25, ये वैल्यू कितना होगा, -100 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। ये सब कुछ सैम्पल क्वेश्चन था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हम 2 क्वेश्चन मार्क करवा रही है। क्वेश्चन बनाना अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते, लेकिन कोशिश करना पेज नंबर 200 में क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45, ये दोनों बेहतर क्वेश्चन है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम हिंट दे देंगे। बोला है 44 में 2 से जो साइज बताने की, तो मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव ले लो और निगेटिव ले लो, और 45 अगर प्रॉब्लम तो पूछो। कॉन्वेक्स में अगर कुछ क्वेश्चन करवा क्या कन्वेंशन पे तो बना सकता है, पेज नंबर 209 में कन्वेंशन चेंज हो जाएगा कॉन्वेक्स में केस में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और सब क्वेश्चन सेम है। जो प्रॉब्लम पूछो आखिर बनाना तुम ही को, हम तो पहले भी बोले, लगता तो नहीं कि तुम लोग बनाता तो प्रॉब्लम होता तो तुम पूछता ना, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ तुम लोग को आता ही है, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है पूछ सकता है तुम, अगर प्रॉब्लम नहीं तो फ्रैक्शन पढ़ाएंगे अगले दिन। थैंक यू।